Hi, Alifia. Good morning. Good morning. Good morning, Ankita. Good morning, Kavita ji. Are you feeling better, Ankita? Yeah, I'm going to be fine. I'm healing. Okay. That's perfect. Okay, so let's start our week state programming. Let's One, go. Come on, run. Run faster. Yes, fast. Yes, come on, faster. Yes, fast. Come on, faster. Yes, come on. Yes, you can do it. Come on, faster. Yes. Come on, girls. Keep running. Fast. Yes, come on. Fast. Still faster. Yes, faster. Come on. Go fast. Yes, fast. And now stop. Thank you. Yes, very nice. Yes, I'm the winner. And you say to yourself, I am the winner. Yes, I'm the winner. Yes, thank you. So now, repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run. Come on, run faster. Yes, faster. Still faster. Yes. Come on. Yes, come on, fast. Yes, come on, fast. Come on. Yes. Run faster. Come on. Still faster. Yes. Come on, faster. Yes. Come on, fast. You can do it. Come on. Run faster. Still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on. Faster. Yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful. Yes, Stop. I'm the winner. Thank you. We all are the And winners. now you say to yourself, yes, I'm the winner. Yes, I'm the winner. I am the winner. Yes, we all are the winners. And now we say to ourselves, I can. Okay, repeat. I can, I will, I must. I must. I can, I will, I must. Thank you so much. Okay. Let's start our prayer with breathing exercises. Take some deep breaths. Inhale. And then hold for a few seconds. And exhale. One more time, please. Take a deep inhale. And exhale. Your body should be completely straight. Feet touching the ground. And hands, you can put it either on your lap, or because we do a gratitude practice, I like to just join my hands together. Whatever. So let's start. Thank you, God, for this beautiful, amazing life, which is full of love, full of harmony, full of peace, full of bliss, full of prosperity, wealth, full of success. I'm so grateful for being alive today. आज मैं जिंदा हूँ, इसके लिए बहुत 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 ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे एक और नया दिन दिया,
एक और नई आशा के साथ मुझे जगाया। And I know my day is going to be best. और मुझे ये सिखाया कि मुझे खाली मेरा आज अपना अच्छा करना है, तो मेरे आने वाला कल अपने आप अच्छा होता जाएगा। मुझे अपना ये पल, जो पल में हूँ, वो पल पूरी तरह से खुल के जीना है, इतनी ज्यादा खुशी के साथ, जॉय के साथ, पैशन के साथ, एक्साइटमेंट के साथ जीना है ये पल। एंड देन आने वाले पल अपने आप सुधर जाएंगे। ये मुझे पूरी तरह से सिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी अभी भी बहुत कुछ सीख रही हूँ, पर जो कुछ अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया है अब तक, वो मैं इम्प्लीमेंट कर पा रही हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके गाइडेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये एक पाथ, ये रास्ता दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले नहीं पता था कि कैसे क्या रास्ता मिलेगा, नहीं मिलेगा, बट आपने ये पाथ के ऊपर थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी से लाइट करके मुझे ये पूरा ये रास्ते पे चलना सिखाया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें मेरी बॉडी ने मुझे इतना साथ देती है, मेरी बॉडी हमेशा मेरे साथ चलती है। किसी भी प्रकार का ब्रेकडाउन हो या कुछ भी हो, मेरी बॉडी हमेशा मेरे साथ होती है। और कोई हो ना हो, आप मेरे साथ हो, मेरी बॉडी मेरे साथ है। मुझे पता है कि मैं आराम से, जो भी मेरी जर्नी है उसको मैं आराम से पार कर पाऊंगी, आपके गाइडेंस के साथ, आपके सपोर्ट के साथ। Thank you for giving me this miraculous, marvelous body. जो कितनी बेहतरीन तरीके से आपने बनाई है। ये 5 सेंसेस जो मुझे मेरी आसपास की दुनिया का एहसास दिलाते हैं। मैं देख सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं टच करके फील कर सकती हूँ, मैं कुछ भी खा के या पी के उसको टेस्ट कर सकती हूँ, मैं इतने अच्छे बोल सुन सकती हूँ, कितने सारे साउंड्स को मैं सुन सकती हूँ, और कितनी अलग अलग स्मेल्स को मैं स्मेल कर सकती हूँ, सूंघ सकती हूँ। मेरे सारे सेंसेस के लिए, मेरे सेंसेस की ये खूबियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये 5 सेंसेस की वजह से मैं अपने वर्ल्ड को, अपने आसपास की दुनिया को कुछ कुछ महसूस कर पाती। और ये मेरे 5 सेंसेस हमेशा मेरी फेवर में काम करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ऐसी चीजें देखती हूँ जो मुझे देखना चाहिए, जो मुझे देख के बहुत खुशी मिलती है, शांति मिलती है। मैं ऐसी चीजें स्मेल करती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। मैं ऐसी चीजें टेस्ट करती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। और मेरे ये 5 सेंसेस मुझे बताते हैं कि क्या क्या चीजें मुझे पसंद है और क्या मुझे नापसंद है।
तो मेरे ये 5 सेंसेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे टच करने के बाद पता चलता है कि कौन सी चीजें टच करने से मुझे अच्छा फील होता है। मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में भी अपने सेंसेस के थ्रू जान सकती हूँ कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। उसके लिए मेरे 5 सेंसेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये दुनिया को परसीव करने के लिए ये मेरे 5 सेंसेस मुझे काम आते हैं। कभी कभी ट्रूथ डिस्टोर्ट हो जाता है, बट अब जैसे जैसे मेरे 5 सेंसेस मोर 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 अवेयर होते जा रहे हैं, आई कैन सी द वर्ल्ड एज इट इज। मैं ट्रूथ को देख पाती हूँ, समझ पाती हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरे 5 सेंसेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी ये बॉडी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे 2 हाथों के लिए, मेरे पैरों के लिए, मेरे सारे ऑर्गन्स के लिए जो इतने अच्छे से काम करते हैं, just to keep me alive, keep me going। मेरी स्किन इतनी अच्छे से काम करती है, और जितना मैं पॉजिटिविटी में, ग्रेटिट्यूड में बनी रहती हूँ, इतनी मेरी स्किन ग्लो करती जाती है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये स्किन अपने आप को प्यूरिफाई करती जाती है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बॉडी के अंदर जो भी जो सेल्स आते हैं जाते हैं, और पूरा बॉडी एक एक सेल नए रिप्लेस होते जाते हैं, पुराने घटते जाते हैं। ये सारी प्रोसेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर ऑल माय ऑर्गन्स, माय डाइजेस्टिव सिस्टम। जो भी खाती हूँ बहुत ही अच्छे से वो पचाता है, तो जो भी मेरी बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो देता है। ये सलाइवा के लिए शुक्रिया, जो बहुत सारा योगदान करते हैं डाइजेशन के अंदर। एंजाइम्स, हॉर्मोन्स। मेरे लिवर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कितने सारे ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, स्प्लीन, लिवर। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे डाइजेशन में इतना बड़ा इनका योगदान है। मेरी किडनीज इतने अच्छे से पूरे बॉडी में पानी का संतुलन करती है, तो जो भी चीजें मेरी बॉडी के लिए काम की नहीं है उसको बाहर निकालती है। क्या मिरेक्युलस बॉडी बनाई है आपने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑलमाइटी यूनिवर्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सारे ऑर्गन्स का बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी भी ग्लैंड्स है मेरे अंदर, सारी ग्लैंड्स का शुक्रिया। थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, मेरे पेनक्रियास के लिए शुक्रिया, जो परफेक्ट मात्रा में इंसुलिन को पैदा करता है।
और मेरी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को नियंत्रण करता है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थायराइड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरह से वो हॉर्मोन्स रिलीज करता है, मेरे वेट को नियंत्रण करता है, बहुत सारी चीजों को, पूरे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करता है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड। मेरे दिल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरह से वो पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है। मेरे लंग्स के लिए शुक्रिया, जिस तरह से वो सारे मेरे सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, प्योर ऑक्सीजन प्यूरिफाई करके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड फॉर माय अमेजिंग मार्वेलस बॉडी। उसको इतने अच्छे से चलने के लिए, चलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बालों के लिए शुक्रिया, खूबसूरत बाल जो मेरे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर माय स्पाइन, फॉर माय हिप्स, फॉर माय थाइज। थैंक यू। नाउ जस्ट इमेजिन के आपके आसपास इतना प्यार है, और वही प्यार आपके आसपास एक बबल की तरह आपके साथ बना हुआ है। वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करता है। और ये जो बबल है, आपके आसपास जो बबल है प्यार का, लव लाइट, उसका जो बबल है, वो धीरे 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 बढ़ता ही जा रहा है। और आपके प्यार के घेरे के अंदर बहुत सारा आ जा रहा है। वो ये बबल एक्सपांड होता जा रहा है, प्यार का बबल। प्यार ही प्यार है। यही प्यार आपको हमेशा सुरक्षित महसूस करवाता है। ये अपने बबल को, जो प्यार का जो बबल है, उसको एक्सपांड होते हुए देखो। वो एक्सपांड होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है। And we all are ready to receive that love and give it back to the where it belongs. And it circulates. वो जाता है वापस आपके पास, बढ़ के आता है, कई गुना बढ़ के आता है। तो प्यार को हमें इमेजिन करना है बबल के अंदर। Thank you God for my parents, for my 5 elements, हवा, पानी, धरती माता, ईथर एंड फायर। ये 5 एलिमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मम्मी पापा के लिए, मेरे स्पाउस के लिए, मेरे बच्चों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे इन-लॉज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारे मेरी फैमिली के अंदर मुझे बहुत सुरक्षित महसूस करवाते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत केयर करते हैं मेरी। इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। ओह सॉरी, मैंने देखा ही नहीं। किसको स्लो, सबको क्या स्लो सुनाई दे रहा था? ओह आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो क्या हुआ। अभी सुनाई दे रहा है?
हाँ जी, हाँ जी। यानी सुनाई मतलब बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रहा था या फिर कम नहीं बहुत? नहीं, ऐसी नहीं थी, जस्ट दैट थोड़ी सी वॉल्यूम नॉर्मली से हल्की सी कम थी, दैट्स इट। ओके ओके, आई एम सो सॉरी, मैं भी थोड़ा सा दूर था माइक्रोफोन इसलिए शायद। ओके, सो नाउ लेट्स डू अवर EFT। सो EFT का किसी का कोई स्पेशल करवाना की कोई ख्वाहिश है? देखो, एक बात आपको समझनी है। हाँ हकीम बोलो। हकीम, एनीथिंग स्पेशल दैट यू वांट हाँ, टू? सेवन चक्रा के रिगार्डिंग अच्छा है ना? यानी 7 चक्रास आर आवर एनर्जी चैनल्स। Okay. अभी भी वॉइस लो है शैलेंद्र जी? अभी भी क्या वॉइस लो है? सब लोग प्लीज बताएं। अभी बराबर, अभी नहीं आ रहा है, अभी वॉइस बराबर। ओके, अभी वापस उनका मैसेज आया। ओके, तो यानी 7 चक्रास जो है हमारे, वो एनर्जी चैनल है। एनर्जी चैनल में जो डिसरप्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? हमेशा हमारे ही इमोशंस की वजह से होता है। अभी वो इमोशंस कुछ भी हो सकते हैं, बचपन से लेके आज तक। आपको मैं बोलूंगी कि आपको EFT इसके ऊपर भी करना है कि लाइक मान लो आपका कोई ट्रोमा है, बचपन से कोई ऐसी याद जुड़ी हुई है जिसको याद करने से आपको कहीं ना कहीं पे नेगेटिव फीलिंग आती है। जब भी आप वो याद करते हो आपको अच्छा नहीं फील होता है, तो उसके ऊपर भी आप EFT करके उसको पूरी तरह से निकाल सकते हो। वो मुझे तो नहीं पता होगा, वो आपको ही पता है। तो आपको अपने आप भी EFT करना है जब भी आपको ये लगता है। EFT इज वेरी इफेक्टिव। जो काम यहाँ पे लोग थेरापिस्ट के पास जाते हैं, थेरापिस्ट के पास जाके जो कन्वेंशनल मेथड होती है, तो कन्वेंशनल मेथड में क्या होता है, वो आपको मेमोरी लेंस में लेके जाएंगे, पूछेंगे कि अच्छा आपके साथ क्या हुआ था, क्या ट्रेजेडी है या जो भी है, उसको निकालने के लिए फिर उसके ऊपर काम करते। बहुत साल लग जाते, सालों साल लोग थेरापिस्ट के पास जाते, जैसे जिनको PTSD हुआ था। तो मैं ये जो गेरी क्रेग, जो EFT का मेन फाउंडर है, उनका मैंने पूरा पढ़ा था। तो उन्होंने ये PTSD के लोगों के साथ EFT के साथ काम किया। तो जो कन्वेंशनल जो थेरापिस्ट के पास जाते हैं, बहुत कुछ मतलब कन्वेंशनली वो ट्राई करते हैं कि वो PTSD यानी जो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर होता है ना, ये वॉर वगैरह में जाते हैं, किसी को उन्होंने शूट कर दिया, कई कई बार उनको एकदम वो जैसे इनोसेंट लोगों को मारना पड़ता था वॉर के अंदर, तो ऐसा ही होता है। तो उसके बाद उनको PTSD होता है, जो पोस्ट ट्रोमेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं उसको, स्ट्रेस डिसऑर्डर पोस्ट ट्रोमेटिक। तो उसके पेशेंटों के साथ इन्होंने EFT किया। तो जो बरसों से जो चीजें ठीक नहीं हो रही थी, वो 3 या 4 बार EFT करने से ठीक होने लगी। उनके जो बैड मेमोरीज थी, इमोशंस थे, जिनकी वजह से वो जी नहीं पा रहे थे, जिनको लाइफ में हमेशा वो याद आके वो रोने लगते थे, या उनको नाइटमेयर्स आते थे, सो नहीं पाते थे, वो सारा कुछ EFT करने से फटाफट चला गया। तो इनिशियली उन्होंने उनके साथ किया था, एंड देन ही स्टार्टेड डूइंग विद एवरीवन, और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं EFT। अगर आप 1 या 2 साल से कर रहे हो तो भी आप मतलब हाँ इम्प्रूवमेंट होगा। बट मैंने वो भी पढ़ा कि अगर आप अपने स्पेसिफिक चीज के लिए नहीं करते हो EFT, अपने स्पेसिफिक इमोशंस को रूट कोज के लिए नहीं करते हो, ऊपर ऊपर से कोई भी स्क्रिप्ट करके आप ऊपर से कर रहे हो, आपको 20% ही फायदा मिलेगा। यानी आपको अपने रूट कोज के अंदर जाना है, रूट के अंदर अपने इमोशंस को देखना है कि क्या है वो इमोशंस जो मुझे अभी इस टाइम पे बॉदर करते हैं। तो वही इमोशन, अगर मुझे मान लो कि कोई गिल्ट है, ओके, वो गिल्ट जा नहीं रहा है किसी भी तरह से, यानी वैसे तो हम गिल्ट को जाने के लिए हम ये सब भी किया है, हमने मिरर वर्क वो सब तो हम करते हैं, ठीक है, मतलब उससे भी काफी कम होता है। बट तो भी अगर वापस वो गिल्ट आ रहा है, तो वो गिल्ट के ऊपर आप कर सकते हो, लाइक दिस गिल्ट
करके आप उसको निकाल सकते हो, टैप कर करके। टैपिंग इज अमेजिंग प्रैक्टिस। जितना मैं उसके बारे में बार और पढ़ती हूँ, मुझे पता चलता है कि ओ माय गॉड, दिस इज समथिंग विच इज फ्रीली अवेलेबल टू अस, एंड if we use it we can do miraculous things with our emotions. तो चक्रास जो हमारी एनर्जी चैनल्स है उसी वजह से ब्लॉक है, जिस इमोशंस की वजह से। तो चक्रास के लिए तो मेनली अगर चक्रास को भी हम उसके ऊपर फोकस करके उसकी एनर्जी चैनल्स को भी हम खोल सकते हैं। इसके लिए कोई कोई मंत्रास होते हैं, कोई कोई एफर्मेशंस बोलते हैं, कोई कलर्स हमें वहां पे फोकस करना होता है, या फिर वहां पे बस खाली हमारा ध्यान लेके जाके हमें इंस्ट्रक्शन देने होते हैं कि हाँ मेरा चक्रास ओपन हो रहे हैं। तो वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि यहाँ पे EFT हम चक्रास के लिए, क्योंकि हमें पता नहीं ना कौन से इमोशंस की वजह से वो ब्लॉक्ड है। हम यहाँ पे कोई भी एक टॉपिक पे, EFT में ये बहुत जरूरी होता है कि 1 by 1 आपको टॉपिक पे काम करना होता है। अगर आप बहुत कुछ एक साथ करने जाओगे तो उसका फिर ज्यादा फायदा नहीं है। सो आई होप इट मेक सेंस। तो किसी पर्टिकुलर एरिया पे अगर आपको करना है तो यू कैन टेल मी, or else I can just take it on our health or a body or something like that. क्योंकि बॉडी में जो भी डिसईज है वो ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ आवर इमोशंस। अगर मान लो हम न्यूट्रिशनल खाना भी नहीं खाते हैं, या हमें कुछ चीजों का एडिक्शन हो जाता है, एडिक्शन भी नहीं बोलते, चलो क्रेविंग्स ही बोल लेते हैं, कि कोई कोई चीज का क्रेविंग्स भी अगर होता है बार बार, और क्रेविंग्स की वजह से अगर हम खाते हैं तो वो भी हमारे इमोशंस की वजह से ही होता है। वो क्रेविंग्स भी इमोशंस की वजह से आते हैं। तो हमें ये समझना है जितना हो सके। सो लेट्स वर्क ऑन अवर क्रेविंग्स टुडे। अभी ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है कि कहीं ना कहीं पे कुछ इमोशन है जिसकी वजह से हम क्रेव करते हैं फूड को। ओके, सो लेट्स डू इट ऑन दैट वन। सो इवन दो I have this craving for sugar, even though I have this craving for certain foods, कभी मुझे अंदर से ही मुझे एहसास आता है कि मुझे ये चीज खानी है, या बार बार मैं खाने की ओर रिसोर्ट होती जाती हूँ, और मुझे पता ही नहीं होता है कि मुझे भूख नहीं है तो भी मैं खा लेती हूँ कभी कभी। But I deeply and completely love, honor, and accept myself. Even though sometimes I crave for foods which are not healthy for my body. मुझे पता होता है कि ये फूड्स मेरी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, तो भी मैं उसकी तरफ जाती हूँ, बढ़ती हूँ और मैं खा लेती हूँ, क्रेव करने लगती हूँ। But I still deeply and completely love, honor, and accept myself. I love myself and I approve of myself. हाँ, ये शुगर की क्रेविंग्स कभी कभी मुझे होती है, कभी कभी मुझे चॉकलेट्स की क्रेविंग होती है, एंड वो खाने के बाद कभी कभी मुझे बहुत गिल्टी फील होती है। ऐसा लगता है मैंने बहुत खा लिया, और कभी कभी मैं अवेयरनेस में भी नहीं होती हूँ, and I just grab a food and I eat without even being aware of it.
Yes, these cravings. I don't know why I crave these foods. I crave and I grab those kind of foods which are not good for my body. हाँ, कभी कभी ये चिप्स की क्रेविंग मुझे होती है. मिठाइयों की क्रेविंग्स होने लगती है, चाय की क्रेविंग होती है, और बिना हंगर के खाने की क्रेविंग होती है. मुझे नहीं पता वो क्यों होता है, बट आई नो मैं अपने ही कोई इमोशंस को दबाने के लिए, कोई इमोशन को सप्रेस करने के लिए मैं इस तरह के एक्ट करती हूँ. बट आई स्टिल डीपली एंड कंप्लीटली love, honor and accept myself. ये क्रेविंग्स मेरे सामने कभी कभी जीत जाते हैं और मैं हार जाती हूँ. और बिना भूख लगे भी मैं खाने लगती हूँ, just to mask some of my emotions. मुझे अच्छा फील करने के लिए किसी खाने की जरूरत नहीं है. मुझे ये पता है तो भी मैं कभी कभी चीजों के लिए बहुत क्रेव करती हूँ. मुझे लगता है कि नहीं, मैं चाय पीऊंगी तो ही मेरा ये सिर दर्द खत्म होगा, इसलिए मैं चाय को क्रेव करने लगती हूँ. या कभी कभी चीजें जस्ट मैं टेस्ट के लिए क्रेव करने लगती हूँ, बट मुझे पता है उसके पीछे कोई ना कोई हिडन इमोशंस है जिसको मैं टालने की कोशिश करती हूँ, जिसको मैं फेस नहीं करना चाहती. And so to make myself feel better, I crave for food. And I eat it without any hunger. But I still deeply and completely love, honor, and accept myself. मुझे पता है कि जब मुझे भूख लगती है तभी मुझे खाना है. मेरे बॉडी के जो हंगर सेंटर से पूरी तरह से वो काम करते हैं, वही मुझे बताते हैं कि कब मेरी बॉडी को किसी चीज की क्या जरूरत है. वो मुझे बताते हैं और मैं उनको सुनती हूँ. और मैं बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड करती हूँ कि ये जो भी क्रेविंग्स होती है मुझे, वो कहीं ना कहीं पे मेरे पास्ट में कोई क्रिएट किए गए इमोशंस की वजह से है या मेरे बिलीफ सिस्टम की वजह से है. मैं ऐसी सारी बिलीफ्स को जाने देती हूँ जो मुझे ऐसी क्रेविंग्स की तरफ लेके जाते हैं. या मुझे अननेसेसरी खाने के लिए मुझे उत्तेजित करते हैं.
मैं ऐसे सारे बिलीव्स को अपने अंदर से पूरी तरह से जाने देती हूँ. And I truly understand my body's messages. मैं अपनी बॉडी के सारे मैसेजेस को पूरी तरह से समझती हूँ और मैं अपनी बॉडी को वही चीज देती हूँ जो उसके लिए जरूरी है ऑप्टिमम में काम करने के लिए. I listen to my body's messages and I understand what my body needs to work on its optimum level. और जो भी मैं खाती हूँ उसको बहुत प्यार से, बहुत शुक्राना के साथ में उसको मेरी बॉडी के अंदर जाने देती हूँ. मेरी बॉडी मुझे जो भी बताती है मैं उसको शांति से सुनती हूँ. और उसी तरह से मैं अमल करती हूँ. मेरे एक्शंस भी इसी तरह के होते हैं जो मेरी बॉडी को ऑप्टिमम हेल्थ में लेके आते हैं. I love my amazing body and I deeply and completely love, honor and accept myself despite of all these cravings. And मेरे अंदर जो भी इमोशंस है जिसकी वजह से मुझे ये क्रेविंग्स होती है वो सारे नेगेटिव इमोशंस को, फीलिंग्स को मैं पूरी तरह से जाने देती हूँ. I let go of all my old beliefs. I let go of all the emotions, negative emotions. And I allow myself to relax now. I allow myself to forgive myself. And I love my amazing body. And I give it whatever it needs to return to its optimum health. I love my body. And so it is, and so be it. अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए प्लीज. Okay, so now let's do our Ho'oponopono also for these. कि किस तरह से हम अपनी बॉडी को हमेशा इग्नोर करते हैं और किस तरह से हम अपनी हंगर के बिना भी कुछ खाने लगते हैं, यानी भूख नहीं है तो भी हम कुछ खाने लगते हैं या पीने लगते हैं जस्ट बिकॉज टू मास्क सम इमोशंस. तो हम ही ये करते हैं ना ये सब चीजें. तो अपनी बॉडी से हम अपने आप से आज गिल्टी की जगह माफी मांगेंगे. गिल्ट नहीं फील करना है. गिल्ट कभी भी काम नहीं आएगा. अगर कोई भी चीज के लिए आप अपने आप को बार बार गिल्ट में लेके जा रहे हो, that is the highest negative emotion. Please don't do that. Highest negative emotion. Don't cry because you feel you have made somebody hurt. आपने किसी को दुख पहुंचाया है इसलिए आप रोते रहते हो. वो बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशन है. प्लीज ऐसा मत कीजिए. हमेशा गिल्ट में जाने से अच्छा है आप वहां पे माफी मांगिए, होपोनोपोनो कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए. उसमें से सीखिए. कुछ जो भी है, कुछ नेगेटिव आया है उसमें से सीख के आपको आगे बढ़ना है, ना कि अपने आप को गिल्ट में लेके जाना. ओके, सो लेट्स डू अवर होपोनोपोनो. I call upon the divine energy
ये सूरज की रोशनी को मैं पूरे अपने बॉडी के अंदर भर लेती हूँ, एक एक सेल के अंदर ये रोशनी जा रही है। वो यही रोशनी मेरी सारी चीजों को, मुझे मेरी सारी ऐसी गलतियों को माफ करने के लिए मुझे गाइड करती है, सपोर्ट करती है। So now let's put a hand on our heart. अपना पूरा फोकस हम अपने दिल के ऊपर लेके जाएंगे। वो सारी ऐसी चीजें करने के लिए जो हमें अपनी बॉडी के साथ नहीं करनी चाहिए। कभी हमने अपनी बॉडी को बहुत अब्यूज किया, उसको ऐसे ही कुछ भी मुझे आप पता नहीं आपने कैसे अब्यूज किया, बट आप अपना अपना देखिए और आपने किसी भी तरह उसको अब्यूज किया है तो उससे आज हम माफी मांगेंगे। मे बी अपने थॉट्स के साथ हमने बहुत बुरे थॉट्स दिए अपनी बॉडी को, हमेशा बॉडी के बारे में कंप्लेन की कि ये बॉडी में तो ये प्रॉब्लम है, मेरा तो वेट बढ़ जाता है, मेरी तो स्किन ऐसी है। ये सारी चीजों के लिए पूरी तरह से माफी मांगेंगे। ऐसी चीजों के भी लिए जहाँ पे हमें भूख नहीं है और हम ऐसे ही खाते रहते हैं। अपनी बॉडी को उस तरह से भी हम अब्यूज करते हैं कभी कभी। तो वो सारे ऐसे एक्ट्स के लिए हम अपनी बॉडी से पूरी तरह से दिल से आज माफी मांगते हैं। एंड पूरी तरह से उसको जो चाहिए उसको ऑप्टिमम काम करने के लिए वो हम अपनी बॉडी को देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर प्रेयर। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अभी आप अपने एक एक बॉडी पार्ट के ऊपर हाथ लेके जाइए और बोलते जाइए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यानी आपको कभी भी अगर ब्रेकडाउन भी है किसी चीज में तो आप अपने ये हीलिंग हैंड्स को वहां पे लेके जा सकते हो। वहां पे फोकस करके आपको बार बार ये बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो अभी हम ऐसे ही यूनिवर्सली सभी बॉडी पार्ट्स के ऊपर अपना हीलिंग हैंड्स फिराएंगे और उसको बोलते जाएंगे कंटिन्यूअसली, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। क्योंकि हमने बहुत कंप्लेंट्स की है पास्ट में। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और जब कभी भी आपको किसी भी ब्रेकडाउन है कोई भी चीज में तो तब आपको ये करना है, ठीक है? अपने बॉडी पार्ट को जितना हो सके इतना प्यार करना है और उसके लिए जो भी आपने कंप्लेंट्स की होगी उसके लिए आपको माफी मांगनी है। ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। देखो, हमारे ही थॉट्स हमारी लाइफ बनाते हैं। जितना हम अपने थॉट्स को प्यूरिफाई करते जाएंगे, अपनी बॉडी को भी इस तरह से इंस्ट्रक्शंस देते जाएंगे, इतना ही हम अपनी बॉडी को, अपने माइंड को पूरी तरह से सही इंस्ट्रक्शंस के साथ हम अपनी बॉडी को ऑप्टिमम लेवल पे लेके जाएंगे। तो नाउ लेट्स डू अवर मिरर प्रैक्टिस। Let's do our mirror practice. I love you. I really, really, really love you. You are the best creation of God. Yes. You are a child of God. And I love you. I love you. I approve of you. I respect you. I value you. I trust you.
And I choose happiness and I'm happy. I'm born to live an amazing life. I love my amazing body and I'm fully, optimally healthy and energetic. In the infinity where I am, I'm fully whole and complete. मैं जैसी भी हूं अपने आप में संपूर्ण हूं, परिपूर्ण हूं. And I approve of myself. I'm fully healthy, energetic, and vibrant, and magnificent being of life. Yes, Alethea, you are powerful and magnificent being of life. And I love you. Today is the best day of my life. And I'm capable of doing anything. I am capable. And I'm worthy. I'm worthy of having all good things in my life. I'm worthy of love. I'm worthy of prosperity. I'm worthy of having good relations, satisfying relations in my life, loving, respectful. I'm worthy and I deserve. Okay. Let's thank our money note, and I'm thankful for the money that I've been given throughout my life. जो भी पैसे मुझे मिले इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया. Thank you, thank you, thank you. Okay, so now आपके जो भी ड्रीम्स है उस पर एक नजर मारनी है तो आप कर लीजिए. और ऑलमाइटी को आपको बार बार जोर जोर से बोलना है कि आपके सपने पूरे हो गए हैं. उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया. अभी भी आप बोल सकते हो अपने आप को म्यूट करके, यानी आप तो म्यूट पे ही हो. Okay, let's start our book. तो हमने आई थिंक यहाँ तक हाँ, तो यहाँ से पढ़ना है. सो डू नॉट बी कंसर्न्ड विद द फ्रूट ऑफ योर एक्शन. मैं एज्यूम करती हूँ आप लोगों ने सब कल का, जिन लोगों ने अगर नहीं ज्वाइन किया था तो उन्होंने देख लिया सेशन जो मैंने यूट्यूब के ऊपर रखा है. Okay, so do not be concerned with the fruit of your action. Just give attention to the action itself. The fruit will come of its own accord. This is a powerful spiritual practice. In the Bhagavad Gita, one of the oldest and most beautiful spiritual teachings in existence, non-attachment to the fruit of your action is called Karma Yoga. It is described as the path of consecrated action. उसका मतलब क्या होता है, भगवत गीता में बोला गया है, या मुझे लगता है सभी रिलीजियस बुक्स में ये बोला गया है कि आप जो भी काम करते हो उसके कर्म की, मतलब उसके फ्रूट की आशा रखे बिना, यानी ये काम करने से मुझे ये मिलेगा ऐसी आशाएं रखे बिना जब हम काम करते हैं, पूरे दिल से शुक्राना के साथ जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरे लीन हो गए हैं और वो काम करते हैं, तो उसको मतलब एक अलग ही रेम्स में, जो बोलते हैं रेम बोलते हैं उसको, एक अलग ही रेम में हम लेके जा सकते हैं जब हम इस तरह से कोई भी काम करते हैं. तो हमें अभी यही देखना है कि क्या मैं ये काम में जॉय, शुक्राना फील कर रही हूँ ये काम करते हुए. अगर आप वैसा नहीं फील करते हो तो प्लीज वो शुक्राना लेके आइए अपने काम के अंदर.
जो भी काम करते हैं उसको पहले से ही मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए हमेशा, जैसे अभी भले ही आप किचन में खाना बनाने जा रहे हो, बहुत ही इजी और आपका रोज का काम है, उसको पहले से ही आपने सोच लिया कि थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर माय कुकिंग। तो कोई मतलब आपने भले आपकी एक्शन में अभी आप जो भी करोगे उसमें आपने ऑलरेडी इतने अच्छे भाव डाल दिए कि मैं अगर ये काम कर रही हूँ, ये काम के अंदर में अगर मेरा 100% देती हूँ, तो मुझे पता ही है कि इसका जो रिवॉर्ड भी आएगा वो 100% ही आएगा, अच्छा ही होगा। तो आपको अपने काम के अंदर, इन शॉर्ट, आपको अपने काम के अंदर जब भी कोई भी काम करते हैं, हमें इतना करना है। अभी अपने थॉट्स के साथ हम कुछ भी बदल सकते हैं, राइट? थॉट्स, फीलिंग्स जिसमें भी डाल देते हैं वो चीज सोना बन जाती है। जैसे हम ही अल्केमिस्ट है, किसी भी चीज को हम अपने थॉट्स या फीलिंग्स के साथ कुछ अच्छा कर देते हैं, अच्छा बोल देते हैं, डाल देते हैं, तो वो चीज सोना बन जाती है। तो ऐसे ही हमारे काम के अंदर भी हमें करना है कि जो भी काम करें उसमें अपना 100% दे के उसके आउटकम के लिए ना सोचे, कर्म योग जिसको बोलते हैं, बट वो काम को ही इतने अच्छे ढंग से करें, हमें पता ही है उसका आउटकम अच्छा ही आएगा। When the compulsive striving away from the new ceases, the joy of being flows into everything you do. The moment your attention returns to the now, you feel a presence, a stillness, a peace. You no longer depend on future for fulfillment and satisfaction. यानी यही मोमेंट में आप इतना सेटिस्फाइड फील कर रहे हो। आप फ्यूचर पे डिपेंड नहीं हो अपनी खुशियों के लिए, अपने फुलफिलमेंट के लिए या अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। आप अभी यही मोमेंट में वो जॉय के साथ कुछ कर रहे हो, और यही मोमेंट में आप अपने पूरी तरह से खुशी फील कर रहे हो, पीस, यानी पूरी तरह से अपने खुद के साथ शांत, मतलब शांति में हो। यू डोंट लुक टू इट फॉर साल्वेशन के लिए आप वहां पे नहीं काम कर रहे हो, बट आप काम क्यों कर रहे हो? अपनी जॉय के लिए काम कर रहे हो, अपनी हैप्पीनेस के साथ, अपने पीस के साथ, प्रेजेंट मोमेंट के अंदर वो काम को दिल से, पूरी तरह से, ईमानदारी से, खुशी से, शुक्राना के साथ करते हैं। So you don't look to it for salvation. Therefore, you are not attached to the results, neither failure nor success as the power to change your inner state of being. यानी मैं ऐसा करके मैं दुखी नहीं हो जाती हूँ। जैसे मैं कल आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, ओके? तो कल जैसे मेरे बेटे ने उसके किसी फ्रेंड को घर पे बुलाया था खाने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो उसने यानी कोई अमेरिकन है तो उसको बुलाया कि उसको इंडियन फूड, मेरे बेटे को पता है कि मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, इंडियन फूड में उसको बहुत मतलब खुशी होती है, तो उसने ऐसे ही अपने फ्रेंड को इनवाइट कर लिया। और फ्रेंड को इनवाइट किया, उसको पता है कि हाँ मम्मी अच्छा खाना बनाएंगी जो इंडियन फूड है और उसको पसंद आएगा ही आएगा। तो यानी एक तरह का मुझे क्या लगता है कि हाँ उसने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया है, किसी को इनवाइट किया है, तो आई हैव टू डिलीवर माय बेस्ट, ओके? तो यानी अगर मैं ऐसे करके करती हूँ, ये प्रेशर लेके, स्ट्रेस लेके कि नहीं उसने अपने फ्रेंड को बुलाया है इतने प्यार से तो मुझे डिलीवर करना है, अगर ये प्रेशर लेके मैं काम करूंगी वो काम कभी अच्छे से नहीं होगा। बट अगर मैं इस तरह से काम करती हूँ, इस तरह से खाना बनाती हूँ शुक्राना के साथ कि हाँ कविता जी काम अनम्यूट था, ओके नो प्रॉब्लम। तो मैं शुक्राना के साथ खाना बना रही हूँ, मुझे कोई आउटकम के साथ मैं अटैच्ड नहीं हूँ कि यार उसको खाना पसंद आएगा नहीं आएगा, क्या सब टाइम से हो जाएगा, क्या होगा कि नहीं होगा, इतनी सारी चीजें बनानी है, क्या मैं अच्छे से कर पाऊंगी कि नहीं, ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं है। बस शुक्राना के साथ आप करते ही जाते हो, आउटकम के साथ आप बिल्कुल भी अटैच्ड नहीं हो कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा, इसी के साथ कुछ भी अटैचमेंट नहीं है। ऑफ कोर्स वो काम अच्छा ही होगा, जो भी उसका आउटकम आएगा वो अच्छा ही आएगा।
और कल मैंने सीरियसली इसी तरह से काम किया कि मुझे अपना अच्छा देना है, तो मैं वो काम में एंजॉयमेंट ले रही हूँ, काम को जॉय के साथ कर रही हूँ, आउटकम के साथ बिल्कुल अटैच नहीं हूँ कि उसको क्या लगेगा मेरे बेटे के सामने, उस मतलब उसकी इज्जत अच्छे से उसके सामने हो, मतलब इस तरह की कोई थॉट्स प्रोसेस नहीं है। बस एक ही है कि बच्चे बहुत खुश होके जाए जो भी है। तो जैसे ही मैं आउटकम के साथ अटैच नहीं हूँ, वो चीज अपने आप हो जाएगी। In that state of wholeness, in the absence of psychological time, your sense of self is derived from being. Okay, no, actually, neither failure nor success has the power to change your inner state of being. You have found the life underneath your life situation. तो आपने ही अपनी जिंदगी को जाना है लाइफ अंडरनीथ द लाइफ सिचुएशन। तो लाइफ सिचुएशन जो भी आती है उससे आपको कोई अटैचमेंट नहीं है, उसके साथ आपको कोई लेना देना नहीं है, आप कोई भी रिजल्ट्स के साथ अटैच नहीं हो, आप अपना 100% अभी ये मोमेंट में दे रहे हो। दैट्स इट। यही करना है। अगर हमें अपने फ्यूचर का अच्छा करना है तो उसके साथ नॉन अटैच होके ही करना पड़ेगा। जितना हम अभी देखो, हमने ये भी पढ़ा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि हम अपने ड्रीम्स के साथ भी जितना अटैच हो जाते हैं उसके बाद वो ड्रीम्स कंप्लीट नहीं होते। बट हम जोय में खुशी खुशी के साथ अपने ड्रीम्स को ऐसे ही प्लेफुलनेस में हम उसको इमेजिन करते रहते, विजुअलाइज करते हैं। विजन बोर्ड हमने लगा दिया, हम देखते रहते, खुश होते रहते हैं, बट हम अटैच नहीं है वो ड्रीम के साथ। हम बार बार ऐसा नहीं पूछते कि अरे अभी तक तो ये ड्रीम नहीं कंप्लीट हुआ, ये होगा कि नहीं होगा, हम ऐसे डाउट्स नहीं करते हैं। अगर हम अटैच हो जाते हैं अपने ड्रीम्स के साथ तो वहां पे सब कुछ आएगा, डाउट्स आएंगे, वहां पे टाइम का भी आएगा कि यार ड्रीम तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, क्या ये होगा कि नहीं, नहीं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम नहीं करता, इस तरह के डाउट्स। पर जैसे ही हम खाली काम करते जाते, विजुअलाइज करते जाते, अपनी खुशी में रहते हैं, वो खाली विजुअलाइज करके ही हम तो खुश है कि स्विट्जरलैंड मैं कब जाऊंगी मुझे नहीं पता है, बट अभी मैं विजुअलाइज करके इतनी खुश हूँ कि वाह इतनी हंसी वादियां है, वहां पे मैं हूँ, अपने लव्ड वंस के साथ हूँ, उनके साथ बहुत अच्छे वाले मोमेंट्स एंजॉय करी, बस यही खुशी में मैं खुश हूँ। अभी बिल्कुल भी अटैच नहीं हूँ कि मुझे कब जाने को मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, क्या मेरे पास तो ये चीजें नहीं है, मेरे मेरे तो संबंध इतने अच्छे नहीं है, क्या मैं जाऊंगी कि नहीं, इसके किसी के साथ अटैच नहीं हूँ, बस वो खुशी ले रही हूँ ये प्रेजेंट मोमेंट में विजुअलाइज करके। दैट्स इट। In the absence of psychological time, your sense of self is derived from being, not from your personal past. Therefore, the psychological need to become anything other than who you are already is no longer there. In the world, on the level of your life situation, you may indeed become wealthy, knowledgeable, successful, free of this and that. But in the deeper dimension of being, you are complete and whole now. यानी अभी ये मोमेंट में मैं जो भी हूँ मैं कंप्लीट हूँ, होल हूँ, मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है वो फील करने के लिए, वो कंप्लीट एंड होल के लिए मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। मैं अभी यहाँ पे जो ये मोमेंट में हूँ, इन द इंफिनिटी ऑफ वेयर आई एम होल एंड कंप्लीट, हम बोलते हैं ना मिरर के सामने, तो यही चीज यहाँ पे लागू हो रही है। हमें अपना ये मोमेंट अच्छा करना है। दैट्स इट। In that state of wholeness, would we still be able or willing to pursue external goals? अभी यहाँ पे एकार्ट को किसी ने पूछा कि क्या हम अपने एक्सटर्नल गोल्स को यही होलनेस के स्टेट के अंदर परस्यू कर पाएंगे? यानी गोल तो हमारे सबके पास होते हैं ना कहीं हमें रीच करना होता है, हमारे गोल्स होते हैं कि हाँ मैं ये करूँ, मुझे इसको, ये काम को यहाँ इस तरह से लेके जाना है। तो एकार्ट को किसी ने पूछा कि क्या अभी भी मैं अपनी विलिंगनेस होगी क्या परस्यू करने के लिए एक्सटर्नल गोल्स, क्योंकि वो गोल्स जो है वो तो मैं फ्यूचर में ही देख रही हूँ ना, अभी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं देख रही हूँ। तो उन्होंने बोला ऑफ कोर्स, बट यू विल नॉट हैव इल्यूजरी एक्सपेक्टेशंस दैट एनीथिंग और एनीबडी इन द फ्यूचर विल सेव यू और मेक यू हैप्पी। यानी ये एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं कर रहे हैं हम काम,
कि मुझे कोई होगा या कुछ ऐसा मिलेगा जो मुझे हैप्पी करेगा फ्यूचर के अंदर। यानी अगर मैं कल की बात करूँ तो नहीं, बच्चे बोलेंगे कि नहीं अच्छा खाना बना है, वो मुझे हैप्पी करेगा, नहीं, मैं अभी ये स्टेट में खाना बनाती हुई इतनी हैप्पी हूँ, मैं एक्सटर्नल गोल के साथ अटैच्ड नहीं हूँ कि वो गोल अचीव। ये ऐसे ही मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है, बड़े बड़े एग्जांपल के साथ भी हम फिट कर सकते हैं कि मतलब अटैच नहीं हूँ आउटकम के साथ। As far as your life situation is concerned, there may be things to be attained or acquired. That's the world of form, of gain and loss. Yet on a deeper level, you are already complete. And when you realize that there is playful, joyous energy behind what you do. तो आपके जो भी करोगे उसके पीछे एक जॉयफुल एनर्जी होगी, एक खुशी है, एक अलग तरह की खुशी है, शुक्राना है उस काम को करने के लिए, वो एनर्जी है वहां पे। Being free of psychological time, you no longer pursue your goals with grim determination, driven by fear, anger, discontent, or the need to become someone. Nor will you remain inactive through fear of failure. कभी कभी हम क्यों इनएक्टिव भी हो जाते हैं, अपने आप के ही गोल्स को हम सबोटाच करने लगते हैं। मतलब हमारा माइंड कहता है कि नहीं तुझसे नहीं होगा, या तू अगर फेल हो जाएगी तो क्या होगा, तो इसकी वजह से हम एक्शन ही नहीं ले पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कोई नया बिजनेस वेंचर करना है, बट हम वो फियर के साथ हम उसको स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमें उसके आउटकम के साथ अटैच होने के बजाय हमें अगर वो कुछ करना है तो जॉय के साथ, खुशी के साथ हमें बस खाली उसको स्टार्ट करना है, काम करते जाना है, दैट्स इट। ना तो वहां पे कोई फियर है, कोई डर है फेलियर का, या ना तो कोई ईगो का लॉस है कि नहीं मेरा ईगो सबके सामने क्या होगा। यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यार मेरी इमेज क्या होगी अपने बच्चों के सामने अगर मैंने अच्छा खाना नहीं बनाया, तो ये डर कुछ नहीं है वहां पे। हमें बस अपना बेस्ट देना है, दैट्स इट। फिर आउटकम जो भी उसका मिलेगा उसके साथ हम अटैच नहीं है। तो जैसे इसी तरह से मैं कल काम कर रही थी, एंड यस जो भी आया था बच्चा, उसने, दोनों बच्चों ने बहुत पसंद किया खाना और बहुत मजा आया उनको साथ में ऐसे डिनर करने के लिए, और सब कुछ टाइम से हो भी गया। बट क्या मैं अटैच हूँ अपने आउटकम के साथ? क्या मुझे फियर है? नहीं। क्या मुझे फियर ऑफ फेलियर है कि यार ये अच्छा ये होगा ये नहीं होगा? नो, आई एम जस्ट इन्वॉल्व विथ माई वर्क, विथ द जॉय ऑफ डूइंग इट, कि हाँ मुझे अगर ये काम पसंद है तो मैं काम को पूरे दिल से शुक्राना के साथ करती हूँ, दैट्स इट, विदाउट अटैचिंग टू एनी आउटकम। अगर कोई नया बिजनेस वेंचर भी करना है, आपको अंदर से दिल से आ रहा है कि हाँ ये करने से मुझे खुशी मिलती है, और आउटकम के साथ बिल्कुल अटैच नहीं हो आप, तो देखो वो बिजनेस कहाँ से कहाँ थ्राइव करेगा, क्योंकि आप अपनी जान डाल रहे हो उसमें, आप अपना 100% दे रहे हो, शुक्राना के साथ वो कर रहे हो काम। You don't seek permanency where it cannot be found. In the world of form of gain and loss, birth and death, you don't demand that situations, conditions, places, or people should make you happy and then suffer when they don't live up to your expectation. यानी यहाँ पे अगर मैं अटैच हो जाती हूँ, मान लो कि खाना नहीं पसंद आएगा, उसके साथ मैं अटैच हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा? मैं फिर एक्सपेक्टेशंस के साथ अटैच हूँ, इसलिए वहां पे मुझे दुख होगा, या तो फिर मैं सफर करूंगी कि यार ये तो मैं जिस तरह से एक्सपेक्ट किया था इस तरह से तो ये नहीं हुआ, तो इस तरह से मैं दुखी हो जाऊंगी। बट अगर मैं अटैच ही नहीं हूँ किसी आउटकम के साथ, तो फिर वहां पे दुखी होने का कोई चांस ही नहीं है, एक्सपेक्टेशन ही नहीं है मेरी यहाँ पे कोई भी। तो हमें सारे काम ऐसे ही करने हैं कि कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है वहां पे। अगर मैं कुछ नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट करती हूँ, मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हाँ मैं करने के साथ तुरंत ही उसमें पैसे बनाने लग जाऊं, या मैं ये करूं मैं वो करूं, कुछ नहीं। बस मुझे तो ये नाव में अपना 100% देना है,
शुक्राना के साथ ये करते जाना है. That's it. Everything is honored, but nothing matters. Forms are born and die, yet you are aware of the eternal underneath the forms. You know that nothing real can be threatened. जो रियल है वो चीज कभी थ्रेटन नहीं होती, यानी आपका जो इटर्नल बीइंग है वो कभी थ्रेटन नहीं होता. वो खाली फॉर्म है. ये आपका बॉडी, आपका माइंड, ये क्या है? आपका फॉर्म है. बट उसके अंडरनीथ जो आप हो वो क्या है? ट्रू बीइंग. आपका जो ट्रू बीइंग है वो इटर्नल है, और वो तो ऑलरेडी इटर्नली हैप्पी एंड इटर्नली काइंड, कंपैशनेट, ब्लिसफुल है. तो उसको ये एक्सटर्नल चीजों की कोई जरूरत नहीं है ब्लिसफुल फील करने के लिए. When this is your state of being, how can you not succeed? You have succeeded already. यानी देखो कितना मजेदार है कि सक्सेस के पीछे नहीं भाग रहे. फिर आप अपने नाव के अंदर जीते हो, उसमें आप अपने 100% देते हो. सक्सेस आएगी ही आएगी वहां पे, क्योंकि वहां पे आप अटैच भी नहीं हो सक्सेस के साथ. सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी. तो यही एक विश्वास के साथ जो हमारा इटर्नल बीइंग है वो क्या है? वही ये विश्वास है, यही आस्था है, और यही सब कुछ है. वही प्रेजेंट मोमेंट के अंदर हमें अपना ये मोमेंट सबसे बेहतरीन मोमेंट बनाना है. दैट्स इट. और अपने आप उसका जो भी मिलना होगा सक्सेस, वो अपने आप मिलेगा. किसी चीज के साथ हम अटैच नहीं, अपने गोल के साथ, अपने ड्रीम्स के साथ. ये मुझे मिलेगा कि नहीं, या ये मेरे साथ ऐसा होगा कि नहीं, इसके साथ मैं बिल्कुल भी अटैच नहीं हूँ. मैं कर्म करती जाती हूँ विदाउट एक्सपेक्टिंग द फ्रूट्स ऑफ माय कर्मा. So yes, let me see what time is it. Okay, let's read a little bit more. Mind strategies for avoiding the now. Mind की एक strategy होती है now को avoid करने की. Loss of now, the core delusion. Even if I completely accept that ultimately time is an illusion, what difference is that going to make in my life? I still have to live in a world that is completely dominated by time. तो यहाँ पे एकार्ट को किसी ने पूछा कि भले चलो मैं मान लेती हूँ एक सेकंड के लिए कि हाँ मैंने पूरी तरह से ये एक्सेप्ट कर लिया कि टाइम इल्यूजन है, यानी पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं है, जो भी है प्रेजेंट मोमेंट है. बट क्या, किस तरह से वो डिफरेंस मेक करेगा मेरी लाइफ के अंदर? क्योंकि मैं तो अभी भी ऐसी दुनिया में जीती हूँ जहाँ पे टाइम की घड़ी की सुइयों पे हम काम करते हैं. यानी अभी भी मैंने टाइम देखा ना कि जैसे अभी 6 और 7 हुआ है, तो ओके आई कैन रीड फर्दर. तो यानी टाइम डोमिनेटेड वर्ल्ड तो है ये. वर्ल्ड में हम ऐसे ही दुनिया में हम रहते हैं जहाँ पे टाइम की घड़ियों पे ही हम चलते हैं, टाइम में ही हम काम करते हैं. तो लेट्स सी व्हाट आंसर एकार्ट गेव हिम. Intellectual agreement is just another belief and won't make much difference to your life. ये intellectual agreement है. To realize this truth, you need to live it. When every cell of your body is so present that it feels vibrant with life, and when you can feel that life every moment is the joy of being, then it can be said that you are free of time. जब आप इस तरह से जीने लगते हो कि आपका एक एक सेल बॉडी के अंदर वो इट फील्स वाइब्रेंट विथ लाइफ, यानी वो हमेशा पूरी लाइफ को फील कर पाता है. ये जो अमेजिंग लाइफ हमको मिली है वो हम फील कर पाते हैं एक एक मोमेंट में, और हम जॉय ऑफ बीइंग में रहते हैं, देन यू आर कंप्लीटली फ्री ऑफ टाइम. यानी अगर मैं ये मोमेंट में बहुत ही जॉयफुली कुछ काम करती हूँ तो मुझे टाइम की कोई चिंता नहीं है कि क्या मैं ये टाइम में खत्म कर पाऊंगी या टाइम में ये होगा नहीं होगा, इससे कोई मुझे लेना देना नहीं है. बट मैं ये मोमेंट में जॉयफुल हूँ. ये मोमेंट में मैं अपने एक एक सेल से इस तरह से वाइब्रेंटली एनर्जी को वाइब्रेट करती हूँ, ऐसी एनर्जी पे वाइब्रेट करती हूँ जहाँ पे मैं पूरी तरह से ये नाव में इन्वॉल्व हूँ. तो यहाँ पे फिर वापस उनको किसी ने ये क्वेश्चन पूछा, बट आई स्टिल हैव टू पे द बिल्स टुमारो. आई एम स्टिल गोइंग टू ग्रो ओल्ड एंड डाई जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स. सो हाउ कैन आई एवर से दैट आई एम फ्री ऑफ टाइम?
So Eckhart ने जवाब दिया, tomorrow's bills are not a problem. The dissolution of the physical body is not a problem. यानी मैं मर जाए, उन्होंने पूछा कि मैं कब, कल तो मैं मरने ही वाला हूँ, just like everybody else. तो क्या मैं अभी भी फ्री हूँ, या अब अगर वो डेथ के साथ अटैच नहीं हो तो yes, you are free. Loss of now is the problem, or rather the core delusion that turns a mere situation, event or emotion into a personal problem and into suffering. Loss of now is loss of being. तो जैसे ही अगर ये फिजिकल बॉडी डिसोल्यूशन उसका होने भी वाला है, यानी अगर मैं मरने वाली भी हूँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? दैट इज जस्ट अ चेंजिंग ऑफ फॉर्म. मैं एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में जाऊंगी. मैं तो एक एनर्जी हूँ. आई एम नेवर डिस्ट्रॉयड, आई एम नेवर क्रिएटेड. से क्या फर्क पड़ता है अगर मैं मरने वाली हूँ कल, या मुझे नहीं पता, मैं नेक्स्ट मोमेंट में भी मर सकती हूँ. बट इफ आई एम नॉट अटैच्ड with that, because I am a formless being. ये तो मेरा एक फॉर्म है अभी जो भी है, but I myself is a formless being. अगर मैं इसको पूरी तरह से समझ जाती हूँ तो फिर मैं नाव में जीना सीख जाऊंगी. मैं किसी भी फ्यूचर के किसी चीज के साथ अटैच नहीं हूँ. बट ऐसा होता है नहीं, हम कई सारी चीजों के साथ अटैच होते हैं. मोस्टली हम लाइफ तो पास्ट और फ्यूचर में ही जी रहे होते हैं. हम नाव में आने के लिए हमें बार बार एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं अभी. बट कोई बात नहीं, ये एफर्ट, दीज एफर्ट्स आर वर्थ. आपका अटेंशन जितना हो सके नाव में लेके आइए, और जितना हो सके इतना अपने आप से पूछते रहिए, एम आई अवेयर, एम आई अवेयर. बस आपको यही बार बार पूछना है. दैट्स इट. To be free of time is to be free of psychological need of past for your identity and future for your fulfillment. It represents the most profound transformation of consciousness that you can imagine. In some rare cases, this shift in consciousness happens dramatically and radically, once and for all. When it does, it usually comes about through total surrender in the midst of intense suffering. Most people, however, have to work at it. यानी हम जैसे लोगों को उसके ऊपर काम करना पड़ता है. कई लोग ऐसे होते हैं कि उनका एक ही सेकंड में वो प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस आ जाता है. यानी वो पूरी तरह से वो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं अपने कॉन्शियसनेस के अंदर. और वो कब होता है? जब वो इंटेंस सफरिंग में होते हैं. आपने कई बार सुना होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं जो अपनी इंटेंस सफरिंग के अंदर वो पूरी तरह से अपने जो उनकी अवेकनिंग हो जाती है. तो ये एकार्ट टोल ने भी जब इनिशियली जब हमने ये स्टार्ट किया था, ये चैप्टर मतलब ये बुक स्टार्ट की थी, तो उन्होंने अपनी खुद की स्टोरी बनाई थी कि किस तरह से उनको सुसाइडल थॉट्स आते थे और किस तरह से वो इतने ज्यादा सफरिंग में थे, उनको अपनी लाइफ में से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था. और उसी टाइम पे एक रात को अचानक वो जब होते हैं, अवेक होते हैं उस टाइम पे, और अचानक से वहां पे इतनी इंटेंस सफरिंग होती है, वहीं पे वो उनका कॉन्शियसनेस अचानक अवेकन हो जाता है. तो किन किन लोगों को काम करना पड़ता है उसके ऊपर, जैसे हम अभी काम कर रहे हैं उसके ऊपर, कि अपने आप को बार बार अवेयरनेस में लाते हैं. कोई लोग होते हैं जिनका अपने आप ही अवेकन हो जाता है. तो ओके, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. So we will continue from here tomorrow when you have had your first few glimpses of the timeless state of consciousness. यहाँ से हम कल पढ़ेंगे. तो sorry for the inconvenient. I will see कि मैं अगर इसके साथ कुछ अटैच कर पाती हूँ, एक्सटर्नल स्पीकर्स या माइक्रोफोन्स कुछ अटैच करूंगी कल, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा बार बार जो आपको कम सुनाई दे रहा है आज. ओके, सो थैंक यू सो मच. लव, लाइट एंड अबंडेंस. किसी को भी कोई क्वेश्चन है यहाँ पे अब तक जो भी हमने पढ़ा उसके बारे में? एनी क्वेश्चंस? और देखो, अगर आपको ऐसा लगता भी नहीं कि यार नहीं ये बुक तो मेरे ऊपर से जा रही है, प्लीज बी विथ इट. कोई बात नहीं. अगर आपको लगता है अभी ऊपर से जा रही है, कुछ नहीं ज्यादा समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं. जस्ट स्टे विथ इट, बी विथ इट. धीरे 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 सारी चीजें अपने आप कुछ ना कुछ मेक सेंस करने लगेगी. अपने आप को आप
अपने आप ही आप मतलब समझते जाओगे। और ये इतना याद रखना, जो भी चीजें आप अभी सीख रहे हो ना बुक में से, वो हमेशा आपके साथ रहेगी। मैंने देखा है कि 4 साल के पहले मैं जो चीजें सीखती थी, उस टाइम पे मुझे जो जो चीजें कुछ कुछ समझ में नहीं भी आती थी, वो आज मुझे पूरी तरह से समझ में आने लगी है। तो यस, यू हैव टू जस्ट स्टे विद इट, दैट्स इट। कोई बात नहीं अभी अगर समझ में नहीं भी आ रहा है। ओके, सो थैंक यू, लव लाइट एंड अबंडेंस। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आते हो, इतने अच्छे से प्रैक्टिसेस करते हो। आप सबके सारे सपने ऑलरेडी पूरे हो गए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लव लाइट एंड अबंडेंस।